सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी कैरियर। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें इन द इंटरव्यू। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। किसी भी इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कितनी तैयारी करते हैं हम इस क्वेश्चन की? सच बताओ, नहीं करते ना, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट है आपका और आपके काम का। कहते हैं ना, एडवर्टाइज ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर हमें चूज करे। सो एज इट इज़ इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांस जो हो वो बढ़ जाए। सो लेट्स डिस्कस हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन द इंटरव्यू। सो हमने ये मेन पॉइंट डाले कि आपको कौन कौन सी चीज़ हाईलाइट करने हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम हाईलाइट करना है, आपको अपना फुल नाम बताना है। उसके बाद आप किस कंपनी के लिए काम करते हो, क्या पोजीशन है आपकी, कौन से लोकेशन पे काम करते हो वो बतानी है आपको अपना टोटल एक्सपीरियंस बताना है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आप जानते हो, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करते हो, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे आपको एक्सपीरियंस है वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं ना कि ये सब एक्सप्लेन करने के बाद बस चुप हो जाते हैं। नहीं, चुप नहीं होना है, आपको अपना काम बताना है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूट किया है, आप क्या काम जानते हो, क्या कर सकते हो, ये चीज़ें बतानी है। आपका इंट्रोडक्शन जो है ना वो मिनिमम 5 to 6 मिनट का होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। तो हम अभी सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। हमने एक एग्जांपल बनाया है, उसके बाद हम इसको आपको समझाएंगे कि आप कैसे आप एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, चाहे आप फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो। सो लेट्स सी द एग्जांपल। My name is Ruhul, currently working as a software engineer with TCS. I have 6.3 years of experience in Java SE, Java EE, Spring Boot, microservices, RESTful web services, MySQL, MongoDB. From last 1.5 years, I'm working on AWS Cloud. Currently, I'm working on the state government project, which is MIS, Management Information System, named as School Education Program Authority. It aims to create single platform to meet the data requirements of all school education system. It is used to manage information of primary and secondary education system. It has more than 47,000 school and more than 2.2 lakhs teacher, and it has more than 50 lakh students. State government managing their education system through this application. It is built on Spring Boot, microservices, RESTful web services, Java 8, MySQL 8. For front-end technology, we are using Angular. It has multiple services like dashboard service, school service, student service, master service, report service. In dashboard service, we can check student count, school count, teacher count. We can see current year and previous year records of the school, student, teacher. In school service, we can register new school, we can active, deactive the school. We have a school merger inside the school service. A school closer, we have from school merger we can merge the school. From school closer we can close the school. We have a student service. And a student service we have a student management, admission, TC generation, attendance. We have a master service. In master service we can create master which will reflect throughout the application. I have worked on master service. In master service we can create master like district, block, gram panchayat, village, assembly, parliament. In district we can create the district which will reflect throughout the application. In block we can create the block which will reflect throughout the application. In the same way we can create gram panchayat, block, cluster, village, assembly, parliament which will reflect throughout the application. All the masters what we are creating in the master service, that will reflect throughout the application. And we can active, deactive, edit the master from the master service. ये एक एग्जांपल था कि ये इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करता है। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, माय नेम इज़ रूहुल, करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपको अपना डेजिग्नेशन बताना है, उसके बाद किस कंपनी के लिए काम करते हो, कौन से लोकेशन पे करते हो। करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विथ TCS एट नोएडा।
उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताने हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आप जानते हो वो बताना है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ टेक्नोलॉजी पे जो है कुछ समय से ही काम करते रहते हैं, जैसे लास्ट 2 ईयर्स या 6 मंथ्स, तो इस तरह से आपको लास्ट में वो भी अटैच करना है। जैसे यहाँ पे हमने किया फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर हम वर्किंग ऑन AWS क्लाउड, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपका ये काम है कि आप कौन से क्लाइंट के लिए काम करते हो, किस तरह का प्रोजेक्ट है आपका, वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ जैसे हमने क्या, करंटली वर्किंग एज अ स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट विच इज़ मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस तरह आपको करना है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई है वो भी बताने हैं आपको। इट इज़ बिल्ट ऑन स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, रेस्टफुल वेब सर्विसेज, जावा 8, MySQL 8। और फ्रंट एंड के लिए अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी आपको बताना है। फॉर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ वी आर यूजिंग एंगुलर। इन द सेम वे आपके प्रोजेक्ट में मॉड्यूल होंगे, सर्विसेज होंगी, उन सारे को लिस्ट आउट करो, बेसिक फंक्शनैलिटी सबकी बताओ, ठीक है। उसके बाद अगर एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे तो मॉड्यूल्स होंगी, उसमें APIs होंगी, उन्हें आप एक्सप्लेन करो 1 by 1, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको बताना है कि आपने क्या, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था उस प्रोजेक्ट में, आपने किस पे काम किया था वो बताना है, और उसे एक्सप्लेन करना है कि हमने कहाँ काम किया और किस तरह से वो फंक्शनैलिटी काम करती है, वो सारी चीज़ें को बतानी है। तो इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि इंट्रोडक्शन पे ही आपका अच्छा इंप्रेशन पर इंटरव्यू अच्छा हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन को तैयार ही नहीं करते हैं, जैसे तैसे बोल के निकल जाते हैं। नहीं, फोकस करो यार, ये फर्स्ट इंप्रेशन, स्पेशली अगर आप MNCs में हो तो अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा ना तो आपसे क्वेश्चन भी कम होंगे, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चूँकि इंट्रोडक्शन से लगेगा ये बंदा काम किया हुआ है, इसके पास एक्सपीरियंस है, ये ऐसे टेक्नोलॉजी जानता है ये, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन पे फोकस होना चाहिए, ध्यान दो, अच्छे से तैयार करो, अपने अकॉर्डिंग तैयार करो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ और इसी तरह का एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग IT Career, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।